Hello students, in the last video we learned all about inductors where we saw various types and applications of inductor. We saw inductance formula in which we saw that this inductance depends upon various dimensions of inductor. We deduced VI relationships, power and energy formula, and we solved few examples and I gave you few practice questions to solve, and in the end we discussed practical inductor. Okay, in the practical inductor we saw there are actually two types of representations of practical inductor. One is this series LR and another one is this LR and C. Okay, this is very interesting to know that what this capacitor is doing in the equivalent circuit of practical inductor. Okay, which we discussed in that video, and we finally concluded that for low frequency, okay, we use first practical inductor symbol or first representation, and at higher frequencies we need to use this one, the second one. ओके सो जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना, वो ज़रूर ये वीडियो देखे और सीखे कि ऐसा क्यों है ना, उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, आप लोगों के लिए बच्चों, जो भी बच्चे खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दोनों टॉपिक्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, गेट हो, ईएस हो, आपका एई का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम्स. ओके, सो चलिए व्हाट्स इन दिस वीडियो. सो in this video we will be learning all about capacitors. Okay, where we will see various types and applications of capacitors. We will see capacitance formula. We will deduce relationship between voltage and current of capacitor. We will find formula for power and energy. We will solve few very good questions, and I am giving you few very interesting problems to practice. Okay, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वहाँ पर गणेशा क्वेश्चन है. ओके, एंड मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगा आपसे वो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनेगा. एंड इन द एंड वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल कैपेसिटर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से. What is capacitor? So a capacitor is a passive element which is designed to store energy in the form of electric field, and it consists of two conducting plates separated by an insulator. That insulator is basically a dielectric material. Dielectric materials कौन कौन से हो सकते हैं? एयर भी हो सकती है, रबर, मिका, etc. Okay, so what are the applications of capacitor now? So capacitors are used in electronics, communications, computer and power systems. Okay, to be specific, capacitors are used in tuning circuits of radio receivers. Okay, they are used in power factor improvement. They are used as dynamic memory elements in computer systems. ओके, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स अवेलेबल. ओके, जिनके लिए सिंबल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं. देर आर लाइक नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स, देर आर पोलराइज कैपेसिटर, देर आर वेरिएबल कैपेसिटर्स, देर आर पोलराइज्ड वेरिएबल कैपेसिटर, एंड देर आर सम प्रीसेट कैपेसिटर. ओके, पोलराइज कैपेसिटर में जो प्लस माइनस टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, आपको सर्किट में इन्हें एज इट इज कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना. और नॉन पोलराइज को आप किसी भी प्लस माइनस से कनेक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू. ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे कि एक कैपेसिटर किस तरह से चार्जेस को स्टोर करता है, और चार्जेस को स्टोर करने का मतलब क्या होता है हम इसे समझते हैं, ठीक है ना. तो चलिए, लेट अस अज्यूम देयर इज अ बैटरी of V volt is connected across the capacitor terminals. Okay, so ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, नेगेटिव टर्मिनल है. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, है ना, यहाँ पर इस प्लेट पर जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वहाँ पर प्लस चार्जेस आ जाते हैं. ओके, हमने एलिमेंट्री फिजिक्स में सीखा है इस चीज़ को, ठीक है. सो एंड इन दी
अदर प्लेट। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ओके, जिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ओके, एक होगा प्लस क्यू तो दूसरा होगा माइनस क्यू। एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू है तो दूसरे पर होगा माइनस क्यू। ओके, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होती हैं प्लेट्स, सेपरेशन जिसे हम कह सकते हैं। ओके, और उस सेपरेशन को हम जनरली डाइलेक्ट्रिक से फिल करते हैं, ठीक है ना, सो दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ओके, सो अभी कैपेसिटेंस क्या होता है इसे समझने के लिए हमें जानना होगा what is the relation between this Q and this voltage. Okay, so there is a direct relation between this charge and the voltage, which is this: the charges stored by a capacitor is directly proportional to the voltage applied between the terminals of the capacitors. Okay, so इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, Q is equals to CV, where this C is constant of proportionality and is known as capacitance ओके बच्चों, सो हम देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। उससे पहले आप यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ फिजिकल और प्रैक्टिकल कैपेसिटर जो आपके यूज़ होते हैं वो मैंने दिखाए। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले कैपेसिटर्स हैं। इनके अलावा भी हज़ारों टाइप के कैपेसिटर्स अवेलेबल होते हैं। देखते हैं Q और V के बीच में ग्राफ। ओके, सो अभी ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? Q इज इक्वल्स टू CV। ओके, सो Q हम अगर y एक्सिस पे लेते हैं तो दिस विल बी y। ओके, अगर हम v लेते हैं x एक्सिस पर दिस विल बी x, और c हमारा कांस्टेंट है, दैट इज नथिंग बट स्लोप। y इज इक्वल्स टू mx। और ये इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इसको आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग कांस्टेंट स्लोप थ्रू आउट, राइट। सो ये जो स्लोप होगी इस लाइन की वो कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू c हियर। ओके, दैट विल बी इक्वल टू c हियर। ठीक है, तो चलिए कैपेसिटेंस को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस? सो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? इट इज फैरेड्स। ओके, इट इज मेजर्ड इन फैरेड्स। ये फेराडेज के ऊपर से नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हमने निकाला है Q इज इक्वल्स टू CV, तो यहाँ से ही हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया। इट इज nothing but Q by V. What is the unit for charge? It is coulomb, and for voltage it is volts, and C by V, which is coulomb per volt, is nothing but farads. Okay, so this is capacitance. Okay, now जिस तरह से हमने देखा था रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के केस में कि भाई ये जो होते हैं वो अपने डायमेंशंस पर डिपेंड करते हैं। ओके, ये अपने डायमेंशंस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस इज रो L बाई ए। फॉर्मूला हमने निकाला था, L का हमने निकाला था म्यू n स्क्वायर A अपॉन L। ओके, सो कैपेसिटेंस भी कुछ इसी तरह से कैपेसिटर की डायमेंशन पर डिपेंड करता है क्या? यस, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द साइज और डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो देखते हैं किस तरह से। इस डायग्राम में आप देखिए, द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स और द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज d हियर। ओके, और जो एरिया है इस प्लेट का, ओके, दैट एरिया is A. Okay, this area is A. So this capacitance C is actually proportional to this area, and it is inversely proportional to the separation between the plates. Okay, इसको हम एक साथ किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं C is proportional to A upon D. Okay, so it can further be written as C is equals to epsilon A upon D, where this epsilon is constant of proportionality here and is known as permittivity. It is known as permittivity. Okay, so ये permittivity जो होता है बेटा, इसका यूनिट बता सकते हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट बन जाएगी, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, C
डी अपॉन ए। ओके, सी का यूनिट होता है फैरड, डी डिस्टेंस है मीटर में, और ए होता है एरिया मीटर स्क्वायर में। सो ये बनेगा फैरड पर मीटर। सो परमिटिविटी की यूनिट हो गई फैरड पर meter. Okay, now this permittivity is actually product of absolute permittivity and relative permittivity. This absolute permittivity is a fixed value which is 8.854 into 10 raised to the power minus 12 farad per meter, and this epsilon r is 1 for air, and it can be of any value for different dielectric material. Okay, so आपको ये याद रखना होता है बच्चों वैल्यू, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ये एयर है तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 लेना है, ठीक है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो मैं इसे कहूँगा वी आई रिलेशनशिप और रिलेशन। ओके, सो देखिए अगर हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल्स टू सी वी। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड करंट विच इज I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये हमने पुराने लेक्चर्स में देखा है। करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज with respect to time, dq by dt, time rate of change of charges या फिर flow of charge, right? So here c is a constant one, v is a time function, so we can write I is equals to simply c dv by dt. ओके, इसको मैं I को मैं IC लिख देता हूँ, V को मैं VC लिख देता हूँ। ये VC है वोल्टेज के कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज, IC है आपका करंट थ्रू दी कैपेसिटर। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है। ओके, एंड दैट इज दिस करंट IC इज not your conduction or conventional current, it is displacement current. Okay, it is displacement current, always remember it is not your conduction current. Okay, जो कि फ्लो होता है आपके नॉर्मल कंडक्टर्स में से या फिर आपके इंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है, दैट इज कंडक्शन करंट। ओके, बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल करंट। ओके, सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए करंट कितने टाइप के होते हैं। ओके, यकीन मानिए 99% स्टूडेंट्स यही सोचते रह जाते हैं कि करंट्स के भी टाइप होते हैं क्या, राइट? बट आपको अब से पता होना चाहिए कि भाई हाँ, करंट के भी टाइप्स होते हैं। ओके, सो इंडक्टर से जो फ्लो होता है या फिर कंडक्टर से जो फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। ओके, कैपेसिटर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, एक और करंट का टाइप होता है विच इज कन्वेक्शन करंट। ओके, और आपको पता लगाना है कि कन्वेक्शन करंट कहाँ फ्लो होता है। आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि कन्वेक्शन करंट, ओके, कन्वेक्शन करंट क्या होता है और कहाँ किस चीज़ों में फ्लो होता है, किन एलिमेंट्स में कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट हो या कन्वेंशनल करंट हो, ओके, या कन्वेंशनल को अपन कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्शन करंट हो, ये दोनों ही करंट आपके जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। ओके, बट जिसके लिए मैंने आपको कमेंट करवाया है विच इज कन्वेक्शन करंट, ओके, दैट डज नॉट ओबेज, ओके, दैट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। अगर आपको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है, आपको अच्छे से और गहराई में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सो चलिए, अब हमें रिलेशन मिल गया है वोल्टेज और करंट के बीच में। सो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो करंट है हमारा IC, ओके, कैपेसिटर करंट, इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, सो क्या हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं? यस, हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ग्राफ ले लेता हूँ। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए किस तरह से होगा। वर्टिकल एक्सिस पर अगर हम ले लेते हैं आई सी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं वी सी, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या होगा भाई, सॉरी वी सी नहीं लूँगा, मैं लूँगा डी वी सी बाई डी टी है। ओके, डी वी सी बाई डी टी। ओके, सो ये ओके ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी फिर से। ओके, सो हमने देखा है कि कैपेसिटर इज ऑल्सो अ लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट हम देख चुके हैं बेटा, आर एल वो दोनों भी लीनियर एलिमेंट होते हैं, और अब हमने देख लिया कि कैपेसिटर भी लीनियर होता है। ओके, सो आर एल सी ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर लीनियर एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, किस तरह से निकालेंगे? देखिए अब हमारे पास इक्वेशन है IC is equals to C dVC by dt. Okay, so from this we can write VC is equals to 1 upon C integration from minus infinity to T IC dt. राइट, ये लिख सकते हैं। अब हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। हम जानते हैं भाई हमने किया है, बार बार किया है, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, यहाँ 1 अपॉन सी है ही, आई सी डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 टू टी आई सी डी टी। ओके, हम पिछले लेक्चर से सीख चुके हैं कि इसे क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव टाइम के लिए जो है इसे हम कहते हैं इनिशियल वोल्टेज। इसे हम कहते हैं इनिशियल वोल्टेज, और आपका ये जो होगा वो होगा किसी भी जो भी आपसे इंस्टेंट पे पूछा गया वो वाला वोल्टेज। ओके, अगर कोई कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड है तो वहाँ पर आप इसको लेंगे, उसका कुछ वैल्यू होगा, अदरवाइज दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, फॉर इनिशियली डिस्चार्ज कैपेसिटर। चलिए हमने रिलेशन देख लिया है वी आई के बीच में, क्यू और सी और वी के बीच में। अब हम आते हैं पावर को लेकर के। Okay, so what is power? Power is the time rate of change of energy, right? It is measured in watts. In the last video हमने देखा है, इसको हमने derive भी किया था बेटा, this P is nothing but product of voltage and current. Okay, किस तरह से voltage और current आता है ये लास्ट वीडियो में आप जाकर के देखिएगा बेटा, वहाँ पर आपको डेरिवेशन कराया है इसका, ठीक है ना। सो इट इज़ ऑलवेज V इंटू आई, कैपेसिटर के लिए हम इसको VC और IC बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस P को लिख सकते हैं VC इंटू IC को क्या लिखा जा सकता है, C dVC बाई dt। ओके, सो हमें पावर जब भी कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी के लिए भी हमने डिराइव किया था बेटा लास्ट वीडियो में, आप उसको फिर से जा कर के देख सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट पी डी टी। ओके, और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, वी आई लिखा है आपने तो वी सी इंटू सी डी वी सी बाई डी टी इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सी इज़ अ कांस्टेंट, सो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सो मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, लाइक आप लिमिट चेंज कर सकते हैं नाउ। ओके, अब इसको आप लिख सकते हैं वी सी इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी सी डी। ओके, वी सी ओनली। ओके, इसमें लिमिट कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू टी हो सकता है, बट हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं तो अपन उसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कितना होगा बताइए, अगर मैं वी सी को विद रिस्पेक्ट टू वी सी इंटीग्रेट करूँगा तो लाइक जैसे हम x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो इट कम्स आउट एज एक्स स्क्वायर अपॉन टू, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा c, ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर अपॉन टू। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
W, लेट अस से WC बोल देता हूँ कैपेसिटर की एनर्जी को, दैट विल कम आउट एज हाफ सी वी सी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर आपने बचपन में सीखा है, ठीक है ना। सो अगेन आपको ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, बट उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे हैं और किन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो फर्स्ट वन हमने देखा क्या बच्चों, Q इज इक्वल्स टू सी वी देखा, ओके। उसके बाद हमने देखा IC इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी, इसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन देख के भी निकाला, ओके। और उसके बाद हमने पावर निकाला विच वॉज वी सी इंटू सी डी वी सी बाई डी टी, और उसके बाद हमने वी सी निकाला दैट इज एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर विच वॉज हाफ सी वी स्क्वायर, ओके। सो हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स विद Vt is equals to 100 sin t 1000 t volts, then determine the current through the capacitor। करंट थ्रू कैपेसिटर पूछा है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है। तो जैसे ये डेटा आपके दिमाग में होता है तो आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। सो आई सी इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ओके, क्योंकि आई सी और V के बीच में रिलेशन यही है, ओके। सो चलिए C का वैल्यू कितना है भाई, C का वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, एंड देन वी विल डिफ्रेंशिएट द फंक्शन ऑफ V with respect to time, okay, and that is equals to here 100 sin 1000 t, okay। so इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन को, तो ओके इट विल कम आउट एज दिस 10 इंटू 10⁻⁻⁶, 100 आपका कांस्टेंट है, बाहर लिया आपने, ओके। सो साइन 1000 डी को करेंगे तो आएगा 1000 इंटू कोसाइन ऑफ 1000 टी, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज, दैट मीन्स 10⁻+10, यहाँ पर है -10, सो दिस विल कम आउट एज 1, ओके। दिस विल बिकम कोसाइन ऑफ 1000 t, okay। so this will be the answer, okay, this will be the answer। उन्होंने करंट पूछा था, आपने करंट बता दिया, इट इज लाइक दिस, ओके। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कई बार आपको ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चंस जो कुछ एग्जाम्स में, वहाँ पर आपको ये फंक्शंस ना लिखा करके आपको बोल देते हैं कि ड्रॉ करिए, तो भाई कोसाइन आपको पता होना चाहिए कोसाइन कैसा दिखता है, कोसाइन इस तरह से दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका IC होगा, यहाँ पर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर आप कुछ इंस्टेंट्स फॉलो कर सकते हैं, लाइक दिस इज 0, दिस विल बी ओके, दिस विल बी पाई, एंड देन सॉरी पाई नहीं, दिस विल बी सम t/2 एंड हियर इट विल बी t, लाइक दिस, ओके। या तो आपको इससे बताना है या तो आपको इससे बताना है, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, which is very interesting question and which is very important for GATE ES aspirants, okay। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नेटवर्क में कैपेसिटेंस को यूज़ करके दिया है आपको, यहाँ पर एक DC सोर्स है, आपके पास कुछ रेजिस्टेंस है और फिर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ आपके EAC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। सो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैपेसिटर डीसी के लिए किस तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो इंडक्टर होता है ये डीसी पर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, और हमने सीखा था कि क्यों करता है, ओके। सो अगर आप फिर से देखना चाहें तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि क्यों एक इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है when it is connected across a DC source, ओके। तो चलिए सेम वे में हम यहाँ पर कैपेसिटर को देखते हैं, क्या ये भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है या फिर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओके। चलिए देखते हैं, देखिए
we have a relation IC is equals to C dVC by dt. ओके, क्या कहता है ये कि जब जब चेंज इन वोल्टेज होगा तब तब करंट होगा. ओके, व्हेन दिस इज जीरो, व्हेन देयर इज नो चेंज in voltage, then this IC will be 0, right? And for DC, okay, and for DC sources, this voltage is always constant. That is why the derivative of that voltage will be 0, right? Am I right? Yes. So अगर ये 0 है, that means क्या होगा बच्चों? इसका मतलब for DC current through capacitor will be 0, and current through any element is 0 only when it is open circuited, right? That is why we will call a capacitor, okay, a capacitor is nothing but open circuit for DC sources. okay, इसको हम एक तरह से और explain कर सकते हैं. okay, किस तरह से? हम जानते हैं कि XC which is capacitive reactance is equal to 1 upon omega c, where this omega is 2 pi f. बहुत ध्यान से देखिएगा, it is 2 pi f, where f is the frequency. okay, now for DC the frequency is 0. if frequency is 0, then XC will be equal to 1 upon 0, which is infinite ohms. what is the meaning of infinite ohms? it is open circuit. okay, that means for DC supply or DC networks, okay, your capacitor acts as open circuit. okay, it acts as open circuit. remember that. okay, always remember that. okay, तो चलिए, हमने दो एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं. हमने इंडक्टर के लिए लास्ट वीडियो में देखा था, इसमें कैपेसिटर के लिए देख लिया है. तो चलिए, इस क्वेश्चन में हम इन दोनों कैपेसिटर्स को ओपन कर देते हैं. ओके, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं. हमसे पूछा क्या गया है? इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स. ओके, सो एनर्जी के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है. एनर्जी होती है कैपेसिटर के लिए हाफ CV स्क्वायर. ओके, C तो दोनों कैपेसिटर्स के लिए गिवन है, 10 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड, बट वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो चलिए, सबसे पहले हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे. ओके, सो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं कैपेसिटर्स को ओपन करके. चलिए, सो सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों, ध्यान से देखिए. दोनों कैपेसिटर्स ओपन है, लेकिन उनके अक्रॉस वोल्टेज ज़रूर होगा. ऐसा नहीं है कि वोल्टेज आपने कुछ और माना ही नहीं उसके अक्रॉस. ओके, ओपन टर्मिनल्स हैं तो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज तो हो सकता है. ओके, so this will be the circuit now. this is 6 kilo ohm resistance, this is 3k here, and it is 1 kilo ohm here, and 10 volts battery is connected. and let us assume now ये वाला कैपेसिटर जो है उसको हमने कैपेसिटर 1 मान लिया, और इसके अक्रॉस हमने VC1 वोल्टेज मान लिया, और यहाँ पर हमने मान लिया कैपेसिटर वोल्टेज VC2. ओके, और यही हमें दोनों को फाइंड आउट करना है, सो दैट वी कैन फाइंड दी एनर्जीज. ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पर इस सर्किट में अगर करंट कोई फ्लो होता है, मान लिया हमने I करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए किस तरह से जाएगा. वो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ तो ओपन मिल गया, यहाँ तो फ्लो नहीं होगा, यहाँ ओपन, यहाँ फ्लो नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पर है, आगे बढ़ेगा. ओके, इस तरह से आगे बढ़ेगा. उसके बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ पर तो जाएगा नहीं. ओके, क्योंकि ओपन सर्किट है. फिर ये आएगा यहाँ पर, और इस तरह से वापस. ओके, क्लोज पाथ इज देयर नाउ, राइट. सो आप देखेंगे सेम current is flowing through 1 kilo ohm resistance, 3 kilo ohm resistance and 6 kilo ohm resistance. इसका मतलब क्या हुआ? all these elements are connected in series. okay, so ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है. साथ ही साथ आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, जो वोल्टेज VC2 है, इट इज एक्चुअली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 3K रेजिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड हैं ये दोनों एलिमेंट्स. ओके, सो हम जो वे वोल्टेज आएगा यहाँ पर, उसे हम VC2 ही बोलेंगे, और VC1 निकालने के लिए हमें एक्चुअली KVL
लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए Vc2 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगर ये करंट I माना है तो हम मानते हैं यहाँ पर जो ड्रॉप होगा दैट विल बी 1 किलो I और सिंपल I। चलिए हम I फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे। बट वोल्टेज ड्रॉप क्या पोलैरिटी के साथ होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर होगा ये प्लस ये माइनस। करंट कितना होगा बच्चों, करंट जो I माना है हमने दैट विल बी, क्योंकि सिंगल लूप नेटवर्क बचा है अभी, सो इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस, राइट। सो दिस इज 1 + 3 + 6, इट विल कम आउट एज 10K। ओके, दैट मीन्स इट इज 1 मिली एम्पियर्स। ओके, सो अगर ये 1 मिली एम्पियर है तो बताइए वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 1 किलो के अक्रॉस। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 1 किलो इंटू 1 मिली, दैट इज 1 वोल्ट। सो प्लस माइनस 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया। उसके बाद 3 पर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, 6 पर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट्स। ओके, ये ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि Vc2 कितना हो गया, Vc2 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट्स। ये तो मुझे मिल गया। Vc1 निकालना पड़ेगा। Vc1 कितना होगा भाई, Vc1 जो होगा वो देखिए यहाँ पर, ये प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6, ये दोनों सेम पोलैरिटी के साथ हैं। ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वो किसके बराबर होगा, Vc1 के बराबर होगा। ओके, तो Vc1 विल बी इक्वल टू 3 + 6 विच इज 9 वोल्ट्स। ओके, सो 9 वोल्ट्स हो गया Vc1। सो अब हम बता सकते हैं कि भाई एनर्जी कितनी होगी। ओके, सो WC1 हम देखते हैं ये क्या होगा, दिस विल बी हाफ C1 Vc1 स्क्वायर। ओके, व्हाट इज C1, आपको वो गिवन है बच्चों, दैट इज 10 माइक्रोफैरड। सो 10⁻⁻6 हो जाएगा। Vc1 आया आपका 9 वोल्ट्स, सो 9 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 81 × 10 810 डिवाइड बाई 2, सो दैट विल बी 405 माइक्रो जूल्स। ओके, सो ये एनर्जी निकली आपकी फर्स्ट कैपेसिटर के लिए। और WC2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी हाफ C2 Vc2 स्क्वायर। ओके, एंड इट विल बी हाफ, C का वैल्यू कितना है भाई 20 माइक्रोफैरड। सो ये सब्स्टिट्यूट किया, Vc2 कितना आया 3 वोल्ट्स, सो 3 का स्क्वायर। ओके, सो कितना हो जाएगा ये, दिस विल कम आउट एज, ये हो गया 10, दिस इज 9। ओके, सो दैट विल कम आउट एज 3 स्क्वायर 9 एंड दिस इज 90 माइक्रो जूल। ओके, सो ये हो गया आपके आंसर्स। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। ओके, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो आपको ये बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगेन फॉर गेट एंड EAC। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है ना, जिसमें आपको एक वेवफॉर्म दे दी जाती है और उसके बाद पूछते हैं कि दूसरी वेवफॉर्म बताइए कैसी बनेगी, या फिर कुछ वैल्यूज पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इंडक्टर में भी किया था। तो चलिए हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज डिटरमाइन द करंट थ्रू अ 200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हुज वोल्टेज इज शोन इन फिगर बिलो। ओके, सो करंट आपसे पूछा गया है, वोल्टेज वेवफॉर्म आपको गिवन है और कैपेसिटर की वैल्यू है 200 माइक्रोफैरड, ठीक है। सो चलिए करंट पूछा है तो करंट तो क्या होता है, करंट हमें पता है, करंट होता है C dVc/dt। ओके, सो यहाँ पर Vc अगर हमारे पास होता, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते, C से मल्टीप्लाई करते हैं, IC मिल जाता। ओके, बट इन दिस क्वेश्चन आपको Vc गिवन नहीं है बच्चों, है ना, आपको वेव फॉर्म गिवन है या कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसका फंक्शन आपको दिया नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। ओके, इसको देख करके निकालना पड़ेगा। ओके, और
इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमने लास्ट लेक्चर में किया था तो हमने सीखा था किस तरह से निकालते हैं, है ना। कई बच्चे पहली बार देख रहे होंगे ये वीडियो। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली सॉल्व करता हूँ। इसके लिए ट्रिक्स भी होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है ना, जिसमें हम सिर्फ स्लोप्स देखते हैं और डायरेक्टली हम ड्रॉ कर देते हैं जो भी वेवफॉर्म पूछी गई है, ठीक है ना। चलिए वो भी हम कभी देखेंगे, बट अभी इसे हम कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं। ओके, कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं। कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करना होता है बच्चों, उसमें हमें VC का जो है फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन लिखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए आप 0 से लेकर के 1 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ के बीच में। ओके, चलिए मैं इसको सेपरेट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक बार बना देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देखिए ज़रा। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट इज़ 0, y कोऑर्डिनेट इज़ ऑल्सो 0। ओके, x कोऑर्डिनेट इज़ 1 ईयर एंड इट इज़ 50 ईयर। ओके, सो अगर आपके पास कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ठीक है ना। ओके, सो उसकी आप इक्वेशंस लिख सकते हैं, फिर उसका फंक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बहुत ही बचपन में हमने पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 and then x minus x1. Okay, but what is this y? It is your y-axis parameter, which is v here. Okay, minus y1 is coordinate, y coordinate. Okay, so this is 0 is equals to, मैं डायरेक्टली अब लिखता हूँ 50 माइनस 0 बटा 1 माइनस 0 and then x is your x-axis variable which is time. Okay, and minus 0, so this will come out as this v will be 50t। कहाँ से कहाँ तक के लिए, between 0 and 1। ओके, तो चलिए हमें एक फंक्शन तो मिल गया, बट अभी हमें पूरा सॉल्व करना है। ओके, हमें यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, चलिए इसको हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक किस तरह से बना है ये। चलिए बच्चों, है ना, साथ में करना है आप लोगों को, फटाफट इसको सॉल्व करना है साथ में, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर है 1, 50 और यहाँ पर है 3, माइनस 50, 3, माइनस 50। ओके, सो ये लाइन की इक्वेशन है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। हाँ भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगी इक्वेशन, लिख देते हैं ज़रा। y विच इज़ v माइनस y1 इज़ 50 is equals to y2 which is minus 50 minus of y1 which is plus 50 divided by x2 which is 3 minus x1 which is 1 into t minus 1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा देखते हैं ज़रा। v माइनस 50 विल बी इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज माइनस 50 इंटू t माइनस 1। इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू माइनस 50t, ये माइनस प्लस 50 हो गया, यहाँ से प्लस 50 और आ गया तो प्लस 100 हो गया। ठीक है बच्चों, ये मिल गया मुझे सेकंड फंक्शन। ओके, आपको एक्चुअली जब भी फंक्शन बनाना है उसके बाद आपको सबसे पहले इसको क्रॉस चेक करना चाहिए, ठीक है ना। ये किस ड्यूरेशन के लिए, देखिए दिस इज बिटवीन 1 and 3। ओके, सो आप एक काम करिए, t इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पर। सो देखिए क्या मिलेगा। सो इट विल बी माइनस 50 प्लस 100, इट विल बी प्लस 50। okay, at t is equals to 1 and it will be equal to
अगर हम 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, इट विल बी 50 इंटू 3 दैट इज -150, तो दिस विल बी -50 एट t इज इक्वल्स टू 3। और यही हमारा यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है, दैट मीन्स हमने जो फंक्शन बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको एक क्रॉस चेक करते आना चाहिए। ओके, तो चलिए लास्ट सेगमेंट और देखते हैं जो कि है 3 से 4 के बीच में। ओके, फटाफट करिए बच्चों। ओके, आप निकाल सकते हैं। आई होप अब आपको बन रहा होगा ये क्वेश्चन, आप लोगों के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, है ना, अदरवाइज इसको डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था। ओके, चलिए। सो ये कैसे चालू हो रहा है भाई, देखिए 3 -50 से इट इज गोइंग टू 4 0, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। सो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फटाफट लिखिए। इसके लिए होगा v -50 दैट इज +50 हो जाएगा, is equals to y2 which is 0 minus of minus that is +50 divided by 4 -3 into t -3। ओके, इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा, v is equals to 50 upon 150t, 50t माइनस कितना हो जाएगा, -150, और यहाँ से एक और माइनस आ जाएगा, सो दैट विल बी, ओके दिस इज 50t, और यहाँ हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा फिर से लिखता हूँ, +50t -200 चलिए इसको वेरीफाई करते हैं फटाफट। ये है आपका 3 और 4 के बीच में। ओके, सो यहाँ पर हम t = 3 रखते हैं, तो दिस विल बी कमिंग आउट, this will be coming out as -50 at t is equals to 3, and it will be equal to if you substitute t is equals to 4 you will get 0 at t is equals to 4, और यही आपका जस्टिफाई हो रहा है, मतलब आपने फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बनाए हैं बच्चों, ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं करिए। तो चलिए अब हम इन फंक्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, किस तरह से इसको अब हमें अल्टीमेटली जो फाइंड आउट करना था वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हमें निकालना है करंट। ओके, सो ध्यान से देखिए, VC हमारे पास निकला है। ओके, क्या क्या निकला है बेटा, हमारे पास निकला है 50t, निकला है ये 0 और 1 के बीच में। ओके, इसके बाद हमारे पास ये निकला है -50t प्लस कितना है भाई दूसरा, +100। ओके, तीसरा हमारे पास निकला है +50t -200। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ये है आपका 1 से 3 के बीच में, और ये है 3 से 4 के बीच में, एल्सवेयर इट इज 0। ओके, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। सो अगर आपके पास VC है तो आप IC बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, IC इज नथिंग बट C dVC बाई dt। सो बस आपको C से मल्टीप्लाई करना है, C आपको गिवन है 200 माइक्रोफैरड। ओके, सो आप डिफ्रेंशिएट करिए और आप इसको निकाल सकते हैं, तो IC क्या हो जाएगा, देखिए IC विल बी नाउ 50t को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल बी 50 ओनली। ओके, इनटू आपको 200 माइक्रोफैरड से मल्टीप्लाई कर देना है भाई। नेक्स्ट के लिए देखिए -50 हो जाएगा, ये -50 इंटू 200 माइक्रोफैरड। इन द नेक्स्ट इट विल बी +50 ओके इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, ये हो जाएगा आपके लिए करंट्स, एल्सवेयर इट विल बी 0, राइट। सो ये हो गया आपके लिए फंक्शन। क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यस, इसको बहुत आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये से वैल्यूज़ आ रही हैं कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए बच्चों, है ना, ये आपका आ रहा है, यहाँ हमने माना ये आपका IC, यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन 0 से 4 तक के लिए ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, सो ये कितना आ रहा है निकल के यहाँ पर, देखिए ज़रा, ये आ रहा है
50 into 200 is 10,000, right? It is 10,000, that means 10 to the power 4. तो यहाँ पर हो गया आपका 10 to the power minus 2, ठीक है ना, which is nothing but 10 मिली एम्पियर. ओके, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू आ रही है, दिस इज एक्चुअली माइनस 10 मिली एम्पियर, और फिर ये हो गया आपका फिर से प्लस 10 मिली एम्पियर. तो चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर. सो ये सब, इसमें कोई टाइम फंक्शंस तो है नहीं, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ओके, सो हम इसे लिखेंगे 10 मिली एम्पियर कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से 1 तक के लिए, 0 से 1 तक के लिए. ओके, दिस इज 10 मिली एम्पियर. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो है आईसी मिली एम्पियर में आ रहा है. ओके, इसके बाद ये है नेगेटिव ऑफ दिस, सो ये हमने बना दिया, ये हो गया आपका -10. ओके, ये आपका था +10, और इसके बाद ये फिर से आ गया है +10. कहाँ पर, 4, ये 3, यहाँ 2, ये है 1, लाइक दिस. ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. दिस इज कन्वेंशनल अप्रोच. ओके, आप इसको टेक्निक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ स्लोप देखनी होती है गिवन वेव फॉर्म की, ठीक है ना. तो चलिए वो हम आगे कभी सीखेंगे, उसका भी टाइम आएगा, बट अभी हम देखते हैं होमवर्क क्वेश्चंस. ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पर, टोटल 4 क्वेश्चंस है. ओके, आप इन सभी को सॉल्व करेंगे बच्चों, और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ओके, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है ना. और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है, ठीक है ना. यहाँ पर दिस इज कॉल्ड गणेशा प्रॉब्लम और गणेशा क्वेश्चन. ओके, सो आपसे ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है ना. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कई बच्चों को दिख रहा होगा, बट सर्किट एनालिसिस जिसको अच्छे से बनता है बच्चों, ठीक है ना, जो अपने आप को मानता है कि नहीं मुझे अच्छे से बनता है, उससे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस में आप क्वेश्चंस को रीड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से. ओके, तो जो कन्वीनियंट होगा वो इसको रीड्रॉ करके सॉल्व कर सकता है, जो एक्सपर्ट होगा वो डायरेक्टली इसी में, है ना, वो डायरेक्टली इसी में सॉल्व कर सकता है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा. आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड दी एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स. ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही. आपको इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है, और इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है. ओके, और ये रहा आज के वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा क्यों, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव इंडक्टेंस एज वेल एज कैपेसिटेंस. ओके, हमने लास्ट वीडियो में इंडक्टेंस के बारे में सीखा था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने सीखा था. इन दिस वीडियो हमने कैपेसिटेंस के बारे में जाना है. ओके, और ये क्वेश्चन जो है उन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन कर देता है, ठीक है ना. एल और सी दोनों को कंबाइन करके पूछा गया है. दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेनली फॉर गेट एंड ईएसी. ओके बच्चों, सो जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं उनसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनना चाहिए. ओके, सो अब हम आते हैं आज के लास्ट सेगमेंट पर, विच इज प्रैक्टिकल कैपेसिटर. इसे फटाफट हम कंप्लीट करते हैं. क्या होता है भाई प्रैक्टिकल कैपेसिटर, उसे जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आइडियल कैपेसिटर क्या करता है या क्या होता है. ओके, सो ideal capacitor is one which does not dissipate any kind of energy. ओके, और कोई भी पावर लॉस जहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो लॉसेस, if no loss in capacitor happens, okay, when it is ideal. ओके, सो आइडियल कैपेसिटर में कोई लॉस नहीं होगा. ओके, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंपल ये सी होगा वहाँ पर, क्योंकि लॉस नहीं है तो लॉस के लिए कोई कंपोनेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ये दिस इज द सिंबल फॉर आइडियल कैपेसिटर. ओके, बट इन प्रैक्टिकल कैपेसिटर देयर विल बी सम लॉस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बोलते हैं बच्चों. ओके, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बोलते हैं, ठीक है ना. सो ये हो सकता है कंडक्टिंग प्लेट्स के कारण लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है ना. और जो लॉसेस होते हैं उसके कारण
हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, आप उसको हीट लॉस बोल सकते हैं। ओके, सो हीट लॉस दिखाने के लिए वी यूज रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के पैरेलल में, कैपेसिटर के पैरेलल में। ओके, लेट अस से दिस इज R, दिस इज C। ओके, दिस R इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर इसको हम कहते हैं लीकेज रेजिस्टेंस। ओके, इसकी जो रेटिंग होती है जनरली मेगा ओम्स में होती है। ओके, सो दिस इज वेरी लार्ज एक्चुअली। ओके, एंड इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, और हम प्रैक्टिकल केसेस में भी नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। ये बताइए, जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में हम रेजिस्टेंस जो हो रहा है हीट लॉस को ही दिखा रहा था, राइट? उसको हम वहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं भाई। तो ऐसा क्या कारण है? सेम रीज़न, हीट लॉस दिखाने के लिए कभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, कभी आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो आप इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में करेंगे। आपको मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस दे दिए हैं। पहला मैंने पूछा था आपसे कि कन्वेक्शन करंट के बारे में बताइएगा। ओके, कन्वेक्शन करंट क्या होता है और वो बेसिकली किस टाइप के एलिमेंट्स में फ्लो होता है बच्चों, इसका जवाब आपको देना है सबसे पहले। उसके बाद आपको जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं। उसके बाद अब तीसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, समटाइम इट इज़ इन सीरीज, समटाइम इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ओके, यहाँ लिख देता हूँ सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आपको जवाब देना है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आगे फिर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? और अभी तक आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम आगे जल्दी से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।